اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو انجام دو۔ خلاصے میں یہ ترجمہ ہے، اگر انسان بغیر وضو کے نماز اختیاری صورت میں انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ لہٰذا اگر ہمارا وضو غلط تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو جانے انجانے میں وضو میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے، اور جب وضو باطل تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب ہیں، کہ جس میں اگر کوئی غلطی یا مسٹیک ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا وضو غلط اور باطل نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں مستحب ہیں۔ 1. وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا۔ 2. مسواک یعنی برش کرنا۔ 3. ہاتھوں کو گٹوں سے انگلیوں تک دھلنا۔ 4. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ 5. 3 بار کلی کرنا۔ 6. کچھ مستحب دعاؤں کا پڑھنا کہ جسے ہم انشاءاللہ آخر ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان ہوئیں وہ مستحب تھیں۔ اب ہم وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جو وضو میں واجب ہے، کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا وضو باطل ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نماز بھی صحیح نہیں۔ وضو میں سب سے پہلا مرحلہ نیت کا آتا ہے۔ نیت کا ہمیں زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم صرف ارادہ کر لیں یہی کافی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نیت کب کریں؟ تو نیت کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے وضو کرنے کے لیے وضو خانے کی طرف یا جہاں پر آپ کو وضو انجام دینا ہے اس کی طرف بڑھے، یہی آپ کا ارادہ وضو کے لیے کافی ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نیت میں وہ کون کون سی غلطیاں اور مسٹیک ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ریا اور دکھاوے کی نیت سے اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو ایسے شخص کا وضو باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گرمی میں اپنے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وضو کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہے۔ نیت کے بعد مرحلہ آتا ہے چہرہ دھلنے کا۔ چہرے کو ہم کہاں سے اور کس طریقے سے دھوئیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ چہرے کو لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک دھونا ضروری ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے چہرے کو اپنے دھل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کو اپنا چہرہ وضو میں دھلنا چاہیے۔ دیکھیں بالوں کے اگنے کی جگہ سے وہ پانی ڈال رہے ہیں اور لمبائی میں اپنی ٹھڈی تک وہ پانی پہنچا رہے ہیں۔ چوڑائی کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو انگوٹھے سے لے کر بیچ کی انگلیوں کے درمیان کے حصے کو دھونا ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر جس طریقے سے محمد بھائی نے ابھی انجام دیا ہے اسے آپ انجام دیں اس طریقے سے۔ دیکھیں کہ محمد بھائی نے پہلے داہنے حصے طرف اور پھر بائیں جانب انجام دیا ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو بہتر طریقہ ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ چہرہ دھونے میں کون کون سی غلطیاں، کون کون سے مسٹیک ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ چہرے کے جتنے حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر ان میں سے تھوڑا سا حصہ بھی چھوٹ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمارا وضو باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیشانی کے آخری حصے پہ پانی ڈال رہا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی اپنے پیشانی کے آخری حصے پر پانی ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں پیشانی کا آخری حصہ ہے اور اس پہ انہوں نے پانی ڈالا۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک اس طریقے سے وضو کرنا احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ اگر کوئی شخص نیچے سے اوپر کی طرف اپنے چہرے کو دھل رہا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ایسا کرنا وضو کو باطل کر دیتا ہے، کیونکہ واجب یہ ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف چہرے کو دھلیں۔ چہرہ دھلنے میں خواتین کے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف خواتین کو توجہ ضرور کرنی چاہیے کہ اگر وہ ناک میں کچھ پہنے ہوئی ہیں کیل وغیرہ تو ایسی صورت میں یا تو اسے اتار دیں، یا اگر اتارنا ممکن نہ ہو تو وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہے۔ وضو میں چہرے کے بعد ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھلنا ہے۔ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اور کہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھلنا ہے۔ ہمیں پہلے اپنے داہنے ہاتھ کی کہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پانی پہنچانا اور دھلنا ضروری ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے اپنے داہنے ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ داہنے ہاتھ کو دھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی لیا، پانی اوپر سے نیچے کی طرف ڈالنا ہے۔ یہاں پر محمد بھائی ایک عمل انجام دے رہے ہیں، وہ اندر بھی پانی ڈال رہے ہیں، یہ ایک مستحب طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، جیسا کہ محمد بھائی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور یہ انگوٹھی اتر نہیں پا رہی ہے، انہوں نے اپنی انگوٹھیوں کو گھمایا ہے اپنی انگوٹھی کو، اور پھر اس کے بعد سے وضو کو
आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से हमें भी अंजाम देना है कि हम पहले दाहिने हाथ को धोएंगे, फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ को, जिस तरीके से हमने दाहिना हाथ धोया था इसी तरीके से बायां हाथ भी धोएंगे। आइए अब देखते हैं कि हाथों को धुलने में वो कौन सी गलतियां हैं कि जिसकी बिना पर इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। हाथ का वो हिस्सा कि जिसे हमें धुलना था, अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी छूट जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा वुजू बातिल हो जाएगा। अगर कोई शख्स कोहनियों से लेकर सिर्फ कलाई तक ही अपने हाथों को धुल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई सिर्फ कलाई तक अपने हाथ को धुल रहे हैं, तो ये वुजू बातिल है। वुजू में अपने हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धुलना है, लेकिन अगर कोई शख्स नीचे से ऊपर की तरफ धुलने लगे तो ऐसी सूरत में उसका वुजू बातिल है। या इसी तरीके से जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से भी कोई वुजू अंजाम दे रहा है और अपने हाथों को धुल रहा है तो उसका वुजू बातिल है। देखिए मोहम्मद भाई ऊपर नीचे लगातार खींच रहे हैं, ये सही नहीं है। इस तरीके से अगर कोई अंजाम दे रहा है तो इंसान का वुजू बातिल है। अगर आपने अंगूठी नहीं उतारी और अपनी अंगूठी को इस तरीके से नहीं हिलाया कि अंगूठी के नीचे पानी पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। दोनों हाथों को धुलने के बाद वुजू करने वाले शख्स के लिए यह जरूरी है कि वो सर का मसा करे। हमें सर का मसा किस तरीके से करना है आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सर के इब्तिदाई हिस्से पर जिस मिक़दार में भी मस कर लिया जाए काफी है, लेकिन बेहतर यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद भाई इस वीडियो में अंजाम दे रहे हैं उसे अंजाम दे, इसलिए कि मुस्तहब यह है कि इंसान लंबाई में तकरीबन 1 उंगली के बराबर और चौड़ाई में अपनी 3 उंगलियों के बराबर की जिस तरीके से मोहम्मद भाई ने अंजाम दिया, दोनों तरीके को इस तरीके से अंजाम दिया जाए, ये बेहतर और अफजल है। मस्ह में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। मसलन अगर अलग से बाहर से आप कोई तरी ले रहे हैं फिर उसके बाद आप मसा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। और एक कॉमन मिस्टेक होती है जिसे हम स्क्रीन पर देखते हैं। बाज मोमिनीन अपने दोनों हाथों को मुकम्मल तरीके से पूरी तरीके से धुलने के बाद पानी को बंद करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई मुकम्मल तरीके से अपना हाथ इन्होंने धुल लिया, फिर उसके बाद से पानी बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर मौजूद तरी उनके हाथों में लग गई, उसी से इन्होंने मसा कर लिया। ये सही नहीं है। ऐसी सूरत में इंसान का वुजू बातिल हो जाएगा। तो हम क्या करें कि जिसकी वजह से हमारा वुजू भी बातिल ना हो और पानी भी बर्बाद ना हो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या करना है। हमें इस तरीके से वुजू अंजाम देना है कि जिस तरीके से इस वीडियो में मोहम्मद भाई ने अंजाम दिया है। मोहम्मद भाई ने क्या किया, मोहम्मद भाई ने पानी लिया, बाएं हाथ पर पानी डाला, जो मुस्तहब तरीका है उसे भी पानी डालने के बाद फौरन पानी बंद कर दिया और उसके बाद से मुकम्मल तरीके से अपने हाथ को धोया। धोने के बाद फिर मसा अंजाम दिया। तो ये तरीका ऐसा है कि जिसके जरिए से हमारा वुजू भी बातिल नहीं होगा और पानी भी बर्बाद नहीं होगा। अगर मस की जगह इतनी ज्यादा गीली है कि हाथों की तरी का असर उस पर न हो सके, असलन मालूम ही न हो सके कि मस किया है या नहीं, तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। सर के मस के वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी उंगलियां पेशानी पर मौजूद पानी तक न पहुंचे। अगर पहुंच जा रही हैं तो हमारा वुजू तो सही है, लेकिन अगर हमने उसी पानी से अपने पैरों का मस कर लिया तो ऐसी सूरत में वुजू बातिल हो जाएगा। वुजू में आखिरी वाजिब है दोनों पैरों का मसा करना। हमें किस तरीके से करना है और कहां तक पैरों का मसा करना है आइए देखते हैं स्क्रीन पर। पैर के मस में वाजिब मिक़दार यह है कि इंसान पैर की किसी एक उंगली से लेकर पैर की जोड़ तक मस करे। जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई अंजाम दे रहे हैं कि वो पैर की एक उंगली से शुरू कर रहे हैं और वो जोड़ तक पैरों के मस कर रहे हैं। ये वाजिब मिक़दार है। और चौड़ाई में किस हद तक होनी चाहिए, तो चौड़ाई में जितना भी हो काफी है, लेकिन बेहतर यह है कि इंसान अपने पूरे हथेली के जरिए से मस करे, जिस तरीके से मोहम्मद भाई ने इस वीडियो में अंजाम दिया है। पैर के मस में कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जिसकी बिना पर इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। आइए इसे बेहतर स्क्रीन पर समझते हैं। अगर कोई शख्स मस में हाथ के बजाय पैरों को खींचे, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई सर के मस के बाद पैर का जब मसा कर रहे हैं तो बजाय इसके कि वो हाथों को खींचे पैर को खींच ले रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है, इससे आपका वुजू बातिल हो जाएगा। हाँ, अगर आपका पैर हल्का सा हिला है तो कोई मुश्किल नहीं है, मस सही है। वुजू के बारे में कुछ अहम पॉइंट का जानना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि वुजू के वाजिब आमाल में तरतीब जरूरी है,
यानी सबसे पहले हम चेहरा धोएंगे, फिर उसके बाद दाहिना हाथ धोएंगे, फिर बायां हाथ धोएंगे, फिर सर का मसा करेंगे और फिर अपने दोनों पैरों का मसा अंजाम देंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि वुजू के आमाल और अफ़आल में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। आइए इसे बेहतर समझते हैं स्क्रीन पर। वुजू के अफ़आल में बहुत ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक के बाद एक हमें अमल को अंजाम देना है। लेकिन अगर कोई शख्स वुजू के अफ़आल में इतना ज्यादा फासला दे दे कि लोग ये कहें कि मवालात टूट गया है, उर्फ़े आम में ये कहने लगे कि बहुत ज्यादा फासला कर दिया है, जैसा कि इस वीडियो में आप देखें कि मोहम्मद भाई ने मसा अंजाम दिया, मसा के बाद उन्हें फौरन अपने पैरों का मसा अंजाम देना था, लेकिन दरमियान में उनका फोन आता है, वो आराम से पूरी गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इस दरमियान में कोई भी देखेगा तो वो यही कहेगा कि बहुत ज्यादा फासला हो गया है। और फिर जब वो मुकम्मल तरीके से गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपने दाहिने पैर का मसा अंजाम देते हैं, फिर बाएं पैर का मसा अंजाम देते हैं। ऐसा करना बातिल है। तीसरा अहम पॉइंट यह है कि वुजू के लिए आपके पास वक्त हो। लिहाजा अगर वक्त इतना कम है कि अगर आप वुजू करेंगे और फिर उसके बाद जाकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, या नमाज का कुछ हिस्सा के जो वाजिब हिस्सा है वो वक्त के बाहर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपकी जिम्मेदारी तयम्मुम करना है। इंशाअल्लाह तयम्मुम के प्रैक्टिकल तरीके को हम इंशाअल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो में पेश करेंगे। क्या नामहरम के सामने वुजू करने से वुजू बातिल हो जाता है? नामहरम के सामने वुजू करने से या नामहरम के सामने से गुजर जाने से वुजू बातिल नहीं होता। हाँ, अगर बेपर्दगी हो रही है तो इंसान गुनाहगार है, लेकिन वुजू बातिल नहीं होगा। औरत और मर्द के वुजू में क्या फ़र्क है? औरतों और मर्दों के वुजू के दरमियान कोई खास फ़र्क नहीं पाया जाता, सिर्फ एक मुस्तहब अमल में फ़र्क पाया जाता है। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई किस तरीके से पानी डाल रहे हैं, अपनी कोहनी के ऊपर पानी डाल रहे हैं। इस तरीके से पानी डालना मर्दों के लिए मुस्तहब है, लेकिन ये जो अब पानी डाल रहे हैं, इस तरीके से पानी डालना औरतों के लिए मुस्तहब है। बस यही एक फ़र्क पाया जाता है। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में बयान हुआ था कि वुजू के दरमियान कुछ दुआओं का पढ़ना मुस्तहब है। वो दुआएं इस तरीके से हैं। मोमिनीन कराम, ये थी वो दुआएं कि जिनका वुजू के दरमियान पढ़ना मुस्तहब है। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उन दुआओं को। साथ ही साथ तौजुल मसाइल की तरफ भी रुजू कर सकते हैं, वहाँ भी ये दुआएं मौजूद हैं, आप वहाँ से भी इसे देखकर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए मुफीद साबित हो, आपको पसंद आई हो। तो आप इसे अपने दीगर दोस्तों और मोमिनीन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये सदक़े जारिया हो सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर से एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।